پڑھیے بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مالک صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ رات مجھے میدنی پور میں امام حسین کے حوالے سے بولنا تھا، وہاں سے بول کے آپ کے یہاں، پھر آنے والے کل میں مجھے دوسری جگہ خطاب کرنا ہے. کوشش یہ رہتی ہے کہ خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے واسطے بس دینی، شرعی، مذہبی، اسلامی جو پند و نصائح گفتگو آپ کے خوبصورت دہلیز تک پہنچانے کا کام کروں. حضور مجاہد ملت رحمت الرضوان کہ دیار محبت میں کئی برسوں تک رہ کر آپ کے گھر کا دانہ نہیں مجاہد ملت کا صدقہ کھانے کا موقع نصیب. میں مشین کا باکس میں مانیٹر کا پورا صاف کھلتا آپ تمامی حضرات کو بہت حد تک میں جانتا ہوں اور یہ ہمارا گھر آنگن رہا ہے. مجھے مختصر میں بولنا ہے، پھر آگے سفر جاری رہے گا. بس بغیر کسی تاخیر کے ہم شروع ہوتے ہیں. آپ لوگ اگر سننا چاہتے ہیں تو 5 بار 10 بار نہیں، محبت سے ایک بار دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرائیں، بولے یا حسین. نرالی شان سے کربل کو جا رہے ہیں حسین، نرالی شان سے کربل کو جا رہے ہیں حسین، نبی کی دین کے لیے سر کٹا رہے ہیں حسین. نرالی شان سے کربل کو جا رہے ہیں حسین، نبی کی دین کے لیے سر کٹا رہے ہیں حسین. اور ہر ایک نبی نے پڑھا جس رسول کا کلمہ، ہر ایک نبی نے پڑھا جس رسول کا کلمہ، اسی رسول کا کلمہ بچا رہے ہیں حسین. ہر ایک نبی نے پڑھا جس رسول کا کلمہ، اسی رسول کا کلمہ بچا رہے ہیں حسین. اللہ رب العزت کی کتاب قرآن پاک سے ہم نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا. ترجمہ سے آپ بہت حد تک واقفیت رکھتے ہوں، اس لیے کہ بار بار پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ ہے، خطاب سننے کا موقع ملتا رہتا ہے. محرم الحرام کا مہینہ ہے. محرم کا چاند نظر آتے ہی ہر جگہ امام حسین کے نام کا نعرہ لگنے لگتا ہے. اور آج تو 10ویں محرم کی شب ہے. ایک ہی محرم سے لوگ امام حسین کے ذکر میں لگ جاتے ہیں. آج آپ نے بھی سر شام سے اب تک مداح خیر الانام جناب واصف رضا میدنا پوری سے نعت و مناقب کے اشعار سنے، اور نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا اختر رضا ضیائی صاحب قبلہ سے اشعار کے ذریعے حسینی پیغام آپ نے سننے کی کوشش کی. بلبل باغ مدینہ شاعر اسلام جناب شاہد رضا حبیبی سے آپ نے سنا، اور اندلیب گلشن رسالت جناب غلام رضا مدھو پوری سلمہ آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. بلبل باغ مدینہ شعر و ادب کے نگینہ حضرت علامہ مولانا نقیب اہل سنت الیاس فیضی صاحب قبلہ سے آپ نے کچھ قیمتی گفتگو سماعت کی، اور ہمارے اور آپ کے بیچ نگاہوں کے سامنے بلبل باغ مدینہ شاعر اسلام جناب ندیم رضا مدھو پوری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. آپ ان سے بھی بھرپور انداز میں سماعت کریں گے، اور اللہ کا فضل ہے ہم نے کئی مرتبہ سامنے سے سنا بھی ہے، ہمیں بھی سننے کا شوق ہے.
یہ بھرپور انداز میں سناتے بھی ہیں. چلیے تو سارے لوگ سننے کے لیے تیار ہو جائیے, محبت سے بولیے یا رسول اللہ. ہم نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں, قتل کیے جائیں, انہیں مردہ مت کہو. کیا مت کہو؟ انہیں مردہ مت کہو. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. آخر میں اللہ رب العزت اشارہ فرما رہا ہے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے, تم کو اس کا شعور نہیں ہے, تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ تم سمجھ سکتے. بہرکیف تفسیر ابن کثیر, تفسیر قرطبی کا جب مطالعہ کریں گے تو یہ باتیں کھل کر روز روشن کی طرح عیاں ظاہر و باہر ہو جاتی ہے کہ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہاں وہم و گمان سے بھی بچنے کے لیے منع کیا گیا اور یہ تعلیم دی گئی کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے. کون زندہ ہے؟ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے, شہداء اپنی قبر میں زندہ ہیں, اولیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں. تفاسیر کی کتاب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو قبروں میں کھانا پینا بھی ملتا ہے, عبادت و ریاضت بھی کرتے ہیں, تسبیح و تحلیل بھی پڑھتے ہیں. اور جب قریشی محلہ میں بیٹھے بیٹھے مجاہدین ملت کے دیوانے کھڑے ہو کر, لیٹ کر, اٹھ کر, بیٹھ کر مسجد میں, مدرسہ میں, گاؤں میں, سماج میں سلام بھیجتے ہیں تو مدینے کے تاجدار آپ کے بھیجے ہوئے سلام کو سماعت بھی فرما لیا کرتے ہیں. یہ ہم سنیوں کا عقیدہ رہا ہے. لیکن یاد رکھنا یہ محرم کا موقع ہے, لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ مجاہدین ملت کے غلام ہیں, لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مجاہدین ملت کے دیوانے ہیں, لیکن آپ صرف مجاہدین ملت کے دیوانے نہیں ہیں. دوسری جگہ جائیں گے, محرم کا موقع آئے گا, لوگ ناچ گانے باجے کا انتظام کرتے ہیں, لوگ ڈھول تاشے کا انتظام کرتے ہیں, شراب نوشی ہوتی ہے, عیاشی کے اڈے قائم کیے جاتے ہیں, برائیاں عام ہوتی ہے, بے حیائی کا پردہ اٹھا دیا جاتا ہے. لیکن وہ مجاہدین ملت کے دیوانوں, آپ نے آقا حسین کے نام پہ محفل سجا کے یہ ثبوت دے دیا ہے کہ ہم صرف مجاہدین ملت کے غلام نہیں, ہم تو کربلا کے شہنشاہ کے بھی غلام ہیں, ہم تو آقا حسین کے بھی غلام ہیں. اور صرف غلامی جلسے جلوس تک نہیں دینا ہے, صرف غلامی کا ثبوت جلسے تک نہیں آنا چاہیے, مسجد تک بھی اس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ جب مسجد کے مینار سے اذان کی صدائیں بلند ہوگی تو پھر ہمیں اللہ کی عبادت و ریاضت کے لیے مسجد میں بھی حاضر ہونا ہے. بولیے سبحان اللہ, ہے نا؟ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا کھمبا ہے. من اقامہا اقام الدین, جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. فمن ترکہا ہدم الدین, جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا. اب آپ کہیں گے حضرت آپ نے آیت پڑھی شہادت والی, رب کے راہ میں قتل کیے جانے والے کے حوالے سے, اور یہ آقا کی حدیث لائی نماز کے بارے میں. آئیے آپ کا ذہن چینج کرتا ہوں, کربلا کا میدان ہے, آقا حسین کو پتا ہے کہ میرے نانا جان نے گلی کوچے میں گھوم گھوم کر دین کا پرچار کیا ہے, شریعت کا ایڈورٹائز کیا ہے, مذہب اسلام کی خدمت کی ہے. گلی کوچے میں گھوم کر آقا حسین بھی پرچار کر سکتے تھے. کیا حسین کو پتا نہیں ہے کہ سر کٹانا ضروری نہیں, خاندان کٹانا ضروری نہیں, کنبا کٹانا ضروری نہیں, اپنے بھائیوں کو کٹانا ضروری نہیں, اپنے بچوں کو کٹانا ضروری نہیں. مذہب اسلام کا پرچار گلی کوچے میں میرے نانا جان نے گھوم کے کیا ہے, ہم بھی گلی گلے گھوم کے نانا جان کی شریعت کا اعتراض کر لیں گے. لیکن آقا حسین کربلا کے میدان گئے اور وہاں لڑتے لڑتے جب نماز کا وقت آ گیا آقا حسین نے سر جھکا دیا. ہم نے عالم تصور میں پوچھا آقا حسین یہ تو سمجھا دیجئے جنگ لڑنے گئے تھے, نماز کا وقت آ گیا تھا, آپ کو تو یہ پتا ہی تھا کہ نماز بعد میں پڑھ سکتے ہیں, نماز کی قضا ہو سکتی ہے, پہلے جنگ لڑ لیتے, پہلے دشمنوں کا مقابلہ کر لیتے, پہلے مخالف کو جواب دے دیتے, پہلے اگینسٹ کو آنسر دے دیتے. لیکن آپ نے سجدہ کیوں کیا, دشمنوں کو موقع کیوں دیا؟ آقا حسین نے کہا تم نے نہیں سنا, عالم تصور میں جواب آیا میرے نانا جان کا فرمان ہے الصلاۃ عماد الدین, یعنی نماز دین کا کھمبا ہے. اب مان لیجئے ایک چھت ہے, اس میں پیلر ہوتے ہیں, اور پیلر کے بغیر یہ چھت ٹکنے والی نہیں, چھت رکنے والی نہیں. اگر پیلر ہٹا لیں گے تو چھت گر جائے گی. اسی طرح دین ہے. آقا نے
शरीयत बचाने गए थे, हम तो इस्लाम बचाने गए थे। हमने सोचा कि नमाज को मेरे नाना जान ने खंबा बताया है, खंबा को पकड़ लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत दीन की हिफाजत फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोधे करबो बला। आका हुसैन ने खंबे को पकड़ लिया। और आप तो मुजाहिद मिल्लत के दीवाने हैं। मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान प्लेटफॉर्म पे गाड़ी में बैठे, प्लेटफॉर्म आ गया, नमाज का वक्त है, गालिबे घुमाना है हमारा कि शायद वो भी असरी की नमाज का वक्त। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपने मानने वालों के साथ उतर गए, अपने मानने वालों के साथ उतर गए। मुरीदीन, मुतकिदीन, मुतवस्सिलीन, शैदा, चाहने वाले, दीवाने, गुलाम, नौकर, खादिम। कहा आका गाड़ी जाने का वक्त हो जाएगा, आप नमाज के लिए नियत बांध रहे हैं, अपने मंजिल पे जाके नमाज पढ़ लेंगे, सफर मुकम्मल करके नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने प्लेटफॉर्म पे मुसल्ला बिछाया। क्या किया? प्लेटफॉर्म पे मुसल्ला बिछाया। और जब आका मुजाहिद मिल्लत प्लेटफॉर्म पे मुसल्ला बिछा देते हैं, नमाज में मशगूल व मसरूफ है, गाड़ी जाने का वक्त हो गया, स्टेशन मास्टर का ऑर्डर आ जाता है, ड्राइवर बढ़ाना चाहता है, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ती। ये तो आपको पता है। हमने आलम तसव्वुर में पूछा सरकार मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान से, आका ये समझाया जाए, आपको पता था कि हमारी ट्रेन छूट जाएगी, सफर मुकम्मल ना हो पाएगा, हम रास्ते में रह जाएंगे, फिर भी आपने ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पे नमाज के लिए नियत बांध ली, ऐसा क्यों किया? आका मुजाहिद मिल्लत ने जवाब दिया, ओ नादान, तुम्हें पता नहीं है, करबला में नमाज दीन का खंबा है, खंबे को आका हुसैन ने थामा तो अल्लाह ने दीन बचा लिया, प्लेटफॉर्म पे मुजाहिद मिल्लत ने थाम लिया तो अल्लाह ने उनके लिए ट्रेन करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पर मोतबर, मोतमद, मुस्तनद उलमा इकराम का नूरानी काफिला मौजूद है। और सारे लोग नदीम भाई को सुनने के लिए बहुत बेकरार हैं। चलिए, हमें भी सुनने का शौक है और नात खानी सुननी भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले चंद मिनट गुफ्तगू। मुजाहिद मिल्लत ने नमाज के लिए नीयत बांधी। करबला में नमाज के लिए नीयत बांधने, नमाज सजदे में जाने से अल्लाह ने दीन बचा लिया। और मुजाहिद मिल्लत ने प्लेटफॉर्म पे नीयत बांध ली तो अल्लाह ने ट्रेन को रोक दिया। कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है कि आका हुसैन चले, कहां से? मदीना से चले। कूफियों का खत गया, कूफियों की तरफ से खत गया, लोगों ने इनवाइट किया, हुसैन जल्दी कूफा तशरीफ लाएं, वरना हमें यजीदियों के हाथ पे बैठ मजबूरन होना पड़ेगा। आप आइए, हमें आपके हाथ पे बैठ होना है, हम आपके दीवाने हैं, हम आपके नौकर हैं, हम आपके गुलाम हैं। आका हुसैन मदीना से चले, दुश्मनों का भी खत जा रहा है, अपनों का भी खत जा रहा है, खुतूत के अंबार लग गए, लेटर भर चुका है। इमाम हुसैन मदीना से चले, आका की बारगाह में गए, हाजिरी दी, फातिहा पढ़ा, नाना जान से इजाजत चाहिए, फिर अपनी अम्मा जान सैयदा आबिदा ताहिरा फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर पे गई, इजाजत तलब किया। उसके बाद चले मक्का की तरफ। जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच गए तो फिर खुतूत ज्यादा आने लगे। इमाम हुसैन ने बैठकर डिसाइड किया कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। तो मुस्लिम बिन अकील को भेजने का रास्ता तय पाया कि इन्हें भेजकर पहले हालात की इंक्वायरी करवा ली जाए, पता लगा लिया जाए कि कूफा में कैसा माहौल है। मुस्लिम बिन अकील आए, किताबों में रिवायत है कि दोनों बच्चों के साथ आए, बीवी और बेटी को छोड़ के आए, लेकिन कहीं कहीं पर रिवायत में मना भी किया गया है। पर मुस्लिम बिन अकील आए और जब लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे कतार दर कतार, चौक दर चौक मुरीद होने लगे, बायत होने लगे, उनके दामन से वाबस्ता होने लगे, यजीदियों की झुरमट में खलबली मच गई। फौरन बशीर नामी गवर्नर था कूफा में, चेंज करने को बोला गया। पहले बशीर को ऑर्डर किया गया कि मुस्लिम बिन अकील को पकड़ के मौत के घाट उतरवा दिया जाए।
थी, उसने मना किया। इब्ने ज़ियाद के ऑर्डर से अब गवर्नर चेंज किया गया। उसने मुस्लिम बिन अकील को पकड़ के और उसी अहाते के छत के ऊपर ले जाकर उसे शहीद कर दिया गया। दोनों बच्चों का वाक़या। उसके बाद वहब कलबी आता है, जिसके शादी के अभी 15 दिन गुजरे हैं। अपनी माँ से इजाजत ली, अपनी अहलिया से इजाजत तलब किया, मैदान करबला में उतर गए और आका हुसैन के नाम पे जान की बाजी लगा दी। उसके बाद नन्हे अली असगर आ जाते हैं और उनकी माँ ने कहा इमाम हुसैन से कि मेरा छोटा सा बच्चा सीने का दूध खुश्क हो चुका है, खेमे में सारे लोग प्यासे हैं, आका हुसैन कुछ तो पानी का इंतजाम कर दिया जाए। नन्हे असगर को गोद में लिए आका हुसैन चले दुश्मनों के सामने। सोचा कि चेहरा दिखाऊंगा, उन्हें तरस आ जाएगा, वो पानी अवेलेबल कर देंगे, वो पानी अता कर देंगे, वो पानी दे देंगे, वो पानी मुहैया कर देंगे। इमाम हुसैन बच्चे को लेकर यजीदियों के सामने पहुंचे। कहा ओ दुश्मनों, मेरे नाना जान की शरीयत पे चलने का वादा भी करते हो, शराब नोशी को हम भी करना चाहते हो, गाने बाजे को जायज भी करना चाहते हो, ढोल ताशे को रवा भी जानते हो। इसी के खिलाफ तो झगड़ा था क्या झगड़ा? यजीद भी कलमा पढ़ने वाला, नबी को मानने वाला, लेकिन शरीयत में दखलंदाजी करना चाहता था और वो जो है आमेजिश करके शरीयत चलाना चाहता था, अपने आप को खलीफा बनाना चाहता था। वो चाहता था कि दीन के साथ शराब भी जायज हो, ढोल ताशा भी जायज हो, गाना बाजा भी जायज हो। इसी के खिलाफ इमाम हुसैन थे। करबला के मैदान में नन्हे अली असगर को ले गए, पानी नहीं मिला, दुश्मनों ने तीर से अटैक किया, हमला किया। नन्हे अली असगर के गर्दन में हुलकूम पे तीर लगती है, खून का फव्वारा जारी हो जाता है। इमाम हुसैन पाक के चेहरे पे खून का फव्वारा पड़ता है। आका हुसैन लेकर वापस लौट जाते हैं। उधर से उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन क्या बात है, मेरे बच्चे की रोने की आवाज बंद हो गई है, लगता है मेरे बच्चे को पानी मिल गया है, लगता है मेरे बच्चे की प्यास बुझ गई है। आका हुसैन ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है बेगम, अब ये नन्हा अली असगर कभी तुमसे पानी ना मांगेगा, कभी दूध ना मांगेगा। अल मुख्तसर 18 साल के अली अकबर आ जाते हैं। अब्बा जान अब हमें करबला के मैदान में जाने की इजाजत दी जाए। जवान बेटा बाप कहता है, इमाम हुसैन पाक कहते हैं कि बेटा मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, जा खेमे के अंदर माँ बहनों से इजाजत ले लो। और जो अली अकबर खेमे के अंदर जाते हैं, जाने के बाद इजाजत तलब किया, तलब करने के बाद मैदान करबला में निकल पड़े, दुश्मनों के झुरमुट में घुस गए। और रिवायत आती है कि अली अकबर इमाम हुसैन के बाद ऐसे शख्स है जिन्होंने करबला के मैदान में यजीदियों के साथ सबसे ज्यादा मुकाबला किया। इमाम हुसैन के बाद अली अकबर लड़ते रहे, दुश्मनों का खात्मा होता रहा। अचानक प्यास की तपिश, प्यास की शिद्दत बढ़ गई। वो चले आए खेमे के करीब, खेमे के अंदर अली अकबर की वालदा आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम का जुब्बे मुबारक पकड़ के दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह मेरे बेटे अली अकबर को एक बार खेमे तक वापस ला दे, ताकि मैं उसका जी भर के दीदार कर सकूं, जी भर के उसका चेहरा देख सकूं। इधर शहरबानो जाती है, कहती हूँ मैं रुबाब क्या कर रही हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने सुना है आका का लिबास पकड़ के अगर कोई दुआएं करती है ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता, एक्सेप्ट और कबूल फरमा लेता है। शहरबानो पूछती है और रुबाब बता दो सही कि तू क्या दुआ कर रही है? तब उम्मे रुबाब कहती है कि हाँ मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह मेरे बेटे अली अकबर को एक बार खेमे के पास वापस भेज दे। शहरबानो कहती है उम्मे रुबाब घबराओ नहीं, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है। खेमे के बाहर और अली खेमे के बाहर अली अकबर भी मौजूद है, इमाम हुसैन उनके सामने है। सब खेमे की औरतें निकल के आती है, अली अकबर को देखा। अली अकबर ने कहा मुझे प्यास की शिद्दत है, एक बूंद तो पानी नसीब हो जाए ताकि मेरा हौसला बढ़ जाए, ताकि मेरी सांस चलने लगे, ताकि मेरे हौसले में मजबूती आ जाए। इमाम हुसैन जो अब्बास नंबरदार मस्जिद में पानी लेकर आ रहे थे, गिरा टूटा पड़ा था, उसी को गए छूते हैं और उंगली मार मार के सोचते एक बूंद भी अगर पानी नसीब हो जाए तो अली अकबर के मुंह में डाल दूं, लेकिन पानी नसीब ना हुआ। आखिरकार अपना जुबान अपनी जुबान अली अकबर के मुंह में आका हुसैन डाल देते हैं। वो जुबान अपनी जिस जुबान को मुस्तफा जाने रहमत चूसा करते थे बचपने के आलम में, इमाम हुसैन ने अपनी जुबान को अली अकबर के मुंह में डाल दिया और कहा बेटा ये वो जुबान है जो मेरे नाना जान मुस्तफा पैगंबर
पैगंबर बचपने के आलम में चूमा भी करते थे, चूसा भी करते थे। अब तुझे पानी की जरूरत नहीं, इसी जुबान के बदौलत तेरे बदन में ताकत आ जाएगी। अली अकबर ने चूसने के बाद अपना सफर शुरू किया और गए यजीदियों के झुरमट में। घुसने के बाद नतीजा ये होता है कि यजीदियों के झुरमट में कोहराम मच गया, खलबली मच गई। आखिरकार अमर बिन साद घबरा गया कि ऐसे नहीं होगा, अली अकबर से मुकाबला ऐसे नहीं किया जाएगा। अगर यूं ही लड़ते रहोगे तो अली अकबर सारे काफिले वालों का काम तमाम कर देगा। यकबारगी अटैक करो, यकबारगी हमला करो। सारे लोगों ने मिलकर हमला किया। रिवायत में कहीं कहीं लिखा है कि अली अकबर के नाक काट लिए गए, मुस्ता किया गया, नाक काट लिया गया, कान काट लिया गया, बाजू काट लिए गए, आंखें निकाल दी गई और फूटी फूटी करके करबला के मैदान में फेंक दिया गया और घोड़े दौड़ा दिए गए। किसी रिवायत में ये वाकया इमाम कासिम के हवाले से है। बहरकैफ वाकया तो यही है कि नबी की शरीयत की खातिर करबला के मैदान में एक एक करके शहीद होते चले गए। अब्बास नंबरदार का वाकया आपने बार बार सुना है। दोनों बाजू कट गए, अपने दांत में मस्कीदा दबा लिया और उसके बाद जब दांत में मस्कीदा दबाया, दुश्मनों ने तीर से वार किया, आंख में लगी आंख निकल के बाहर आ गई। फिर भी अब्बास ने हिम्मत हारने का काम नहीं किया। आखिरकार चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। अमर बिन साद ने यह ऑर्डर किया कि अगर अब्बास नंबरदार मस्कीदा भरा पानी लेके अपने खेमे तक चला गया तो हुसैनी काफिले के अंदर ताकत आ जाएगी, उनसे मुकाबला करना बड़ा दुश्वार और डिफिकल्ट मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर सारे लोगों ने यकबारगी हमला किया, यहाँ तक कि मस्कीजा भी टूट फूट गया, पानी सारा का सारा नीचे जमीन पे गिर पड़ा और अब्बास नंबरदार जमीन पे गिरे पड़े हैं। आका हुसैन ने उठाया, अब्बास नंबरदार ने आखिरी दीदार किया, आखिरी मर्तबा ज़ियारत की। अब्बास नंबरदार भी शहीद हो जाते हैं, नन्हे अली असगर को शहीद होते देखा। यहाँ तक कि लाश उठाने का भी ढंग से मौका नहीं मिलता, जनाजा पढ़ना और दफनाना तो दूर की बात है। घोड़े दौड़ा दौड़ा कर सारे लाशों को करबला के तख्ती रेत पर रौंद दिया जाता। आखिरकार औनो मोहम्मद भी आके ये भी शहीद हो गए। इमाम कासिम भी आए इजाजत लेकर, वो इमाम कासिम जो हसन मुस्तफा के बेटे, जिनकी सगाई हुसैन की बेटी बीबी सकीना से हो चुकी थी। इमाम कासिम आए, आका से इजाजत लिया, करबला के मैदान में आ गए और अमर बिन साद पे नजर पड़ी तो अमर बिन साद ने क्या क्या पता है, एक अरसक पहलवान था, 12,000 दीनार मौत दे के उसे रखा गया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग ताकतवर। लेकिन पता है जब अल्लाह की गिरफ्त आती है ना तो बड़े बड़े शोरमा जवाब दे जाते हैं। अल्लाह की कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती। मैं अपने वक्त से चल रहा हूँ, 5 से 6 मिनट 8 मिनट का वक्त हमारा बच गया है। बचते बोले सुभान अल्लाह। इमाम कासिम इजाजत तलब करते आका हुसैन से। आका हुसैन ने फरमाया, कासिम तुम ही तो मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, तुम तो रुक जाओ ताकि तुम्हें देख के भाई हसन की याद ताजा कर लिया करूं। लेकिन इमाम कासिम ने कहा, मेरे चचा जान, मुझे जाने की इजाजत दी जाए, मेरे रहते रहते आपको तकलीफ होगी, ये मुझे गवारा नहीं। मैदान में उतर गए। अमर बिन साद ने कहा अरसद पहलवान से, इससे मुकाबला करना आसान नहीं है, इससे जंग लड़ना आसान नहीं है, अरसद पहलवान तुम जाओ। उसने कहा मैं इतना बड़ा पहलवान, हमें शोहरत हासिल है पहलवानी में और मुझे भेजने की बात करते हो, इंसल्टी नहीं हो जाएगी, बेइज्जती नहीं हो जाएगी? पहले मेरे बेटे लोग हैं, बेटे जाएं, वो पहले मेरे बेटे का तो जवाब दे कासिम, उसके बाद मेरी बारी आएगी। बड़ा बेटा आया, इमाम कासिम ने काम तमाम कर दिया। दूसरा बेटा, तीसरा, चौथा। मैं थोड़ी जल्दी में चल रहा हूँ अपने वक्त के हुदूद और कुयूद के एतबार से। अब देख लीजिए, चारों बेटों का काम तमाम हो गया। अमर बिन साद ने ललकार के कहा, अरसद मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जाके मुकाबला करो, तुमने कहा कि हमारा बेटा मुकाबला के लिए काफी है, देखा तुमने क्या हुआ। अब अरसद पहलवान बड़े जोश और जज्बात में मैदान में कूद पड़े, घोड़े पे सवार होके। इमाम हसन मुज्तबा के बेटे इमाम कासिम, जिनकी सगाई हो चुकी थी बीबी सकीना को, इसीलिए बीबी सकीना कहा जाता है। अब इमाम कासिम देखिए,
अक्ल से काम लेते हैं। कहते हो और पहलवान, इतना बड़ा पहलवान हो के तूने सीन भी ठीक से टाइट नहीं किया, टेढ़ी टीन उल्टी सीन लगा लिया है, उल्टी सीन लगा लिया है। ये इतना सुनना था कि वो पहलवान घबरा गया कि ये तो हमारी बेइज्जती की बात है, हम इतने बड़े पहलवान और अभी तक सीन लगाने का भी हुनर मालूम नहीं। जो ही नजर का नीचे करना था कि इमाम कासिम ने एक तलवार चलाई और अर्जुन पहलवान जो बड़ा दमदार था उसका काम तमाम कर दिया। फिर उसके बाद अमर बिन साद के बदन में खुजलाहट पैदा हो गई। सारे यजीदी भेड़ियों को जमा किया और कहा एक बार में इमाम कासिम पे अटैक किया जाए। एक बार भी हमला किया गया और इमाम कासिम वहीं घोड़े के ऊपर सवार ही गर्दन लटक जाती है, जमीन पर नहीं गिरते। आका हुसैन उन्हें लेके आते हैं और आका हुसैन के गोद में इमाम कासिम की रूह कफसे उनसरी से परवास कर जाती है। फिर आखिर में इमाम हुसैन अपने खीमे की औरतों से कहा सब्र करो, मदीना से चले तुमने सब्र का दामन न छोड़ा, मक्का से चले तुमने सब्र का पैमाना लबरेज में होने दिया, अब घबराने की जरूरत नहीं है, चिंतित मत हो। इमाम हुसैन को जाने दो करबला के मैदान में। कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, जब मक्का से चले हज का मौसम था। क्या मौसम था? हज का मौसम। कुछ लोगों ने कहा कि हज छोड़कर इमाम हुसैन क्यों आ गए करबला के मैदान में, हज छोड़कर क्यों आ गए? बस 3 मिनट बच गया, 4 मिनट बोलो सुभान अल्लाह। उसके बाद आपके सामने गुलाम रजा मधुपुरी और मेरे बड़े भाई नदीम रजा फैजी साहब किबला सुनिए। आका हुसैन मक्का से आए, मदीना से आए, हज जो छोड़ा ऑलरेडी इमाम हुसैन पाक मक्का से कूफा जब रवाना हुए 5 हज कर चुके थे। कितने हज? 5 हज। ये सबको पता है कायदा कि लाइफ में एक ही मरतबा तो हज फर्ज है। तो इमाम हुसैन का अगर हज छूटा भी तो नफली हज छूटा। काबा छोड़ के आए, करबला के मैदान में लोगों ने कहा इमाम हुसैन के लिए जंग लड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट था या काबे का चक्कर लगाना, हज कर लेना, हज छोड़कर क्यों आ गए? मैंने कहा बेवकूफ, वो काबा छोड़ के करबला गर्दन कटाने नहीं, काबा बचाने तशरीफ लाए थे। काबा बचा जिंदाबाद, काबा बचाने के लिए तशरीफ लाए थे। उसके बाद फिर वहां से इमाम हुसैन का सर नेज़े पर, मैं बड़े इख्तिसार के साथ चल रहा हूँ, समझ रहा हूँ वक्त की नजाकत, नेज़े पर सर लेके चले कुरान की तिलावत। रोते रोते ये काफिला पहुंच गया फिर से मदीना लौटकर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए, उन्हीं से आका की नस्ल चली। मैसेज आपको क्या मिला? हर एक वाक़िए को तिवालत के साथ बोला जाए तो एक एक वाक़िया में पूरी पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन वक्त और हालात सिचुएशन को देखते हुए गुफ्तगू करना यही चालाकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज लोग इमाम हुसैन के खिलाफ जो बोलते हैं सिर्फ वही हुसैन के खिलाफ नहीं है, जो यजीदियों के रास्ते पे चलते हैं वो भी आका हुसैन के खिलाफ हो जाते हैं। झगड़ा किस चीज का था? झगड़ा शराब का था। झगड़ा किस चीज का था? झगड़ा गुरूर का था। झगड़ा किस चीज का था? झगड़ा ज़िना का था। झगड़ा किस चीज का था? झगड़ा बादा का भी था। करबला के मैदान में यजीदी मुकाबले में आ गए, इमाम हुसैन के खिलाफ आ गए। आका हुसैन गर्दन कटा के भी अब तक जिंदा, लेकिन जो गाने बाजे की तरफ गए अल्लाह ने उनका नामो निशान मिटा के रख दिया। आज दुनिया में कोई यजीद का चर्चा नहीं करता, जो भी चर्चा करता है आका हुसैन का चर्चा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोधाए करबो बला। पता चल गया, अब लास्ट 2 मिनट्स, पता चल गया कि अगर बनना है तो हुसैनी बनो। ओ धामनगर वालों, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दरबार में रहते हैं, बड़े खुशनसीब हैं आप, मुकद्दर वाले हैं। और सिर्फ दरबार में हैं तो मुकद्दर वाले हैं, कुछ भी करें ऐसा ना करें। मुहर्रम के मौके से आका हुसैन का जिक्र होना चाहिए। अगर आपका गलत कदम उठ जाएगा, आप गलत रास्ते पे चल पड़ोगे तो पूरी दुनिया में धामनगर को लोग जानते हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत से पहचान है उड़ीसा की, दुनिया से लोग क्या कहेंगे?
اس لیے آپ کو سیدھے راستے پہ چلنا ہے، غلط راستے کی طرف نہیں جانا ہے۔ دور حاضر میں جو مروجہ تعزیہ داری کا حکم ہے، یعنی جیسا رواج چل رہا ہے، تعزیہ بنانا اصل میں جائز تھا، اصل میں جائز تھا، ہاں، لیکن امام حسین کے روضے کا نقشہ بنانا، ادب سے رکھنا اور آقا حسین کا ذکر کرنا یہ جائز تھا، لیکن تصویر بدل گئی، رواج بدل گیا، سسٹم بدل گیا، رولز بدل گئے، ضابطے بدل گئے، طریقے بدل گئے تو فتویٰ آنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی جو برائیوں میں ہیلپ کرتا ہے لوگوں کی، اسے اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ فتاویٰ کی کتابوں میں اگر اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پلٹیں گے، فتاویٰ رضویہ، تعزیہ کو، گانے بازے کو حرام لکھا، بارہ شریعت پلٹیں گے، صدر الشریعہ نے حرام لکھا، فقیہ ملت مفتی امجد علی مفتی جلال الدین امجدی کی کتاب پڑھیں گے تو انہوں نے فتاویٰ فیض الرسول میں حرام لکھا، اور یہ دعوے وہابیت سے پہلے عبدالعزیز محدث عبدالحق محدث نبی کی کتاب مطالعہ کریں گے فتاویٰ عزیزیہ تو آپ کو پتا چلے گا انہوں نے بھی تعزیہ داری کو حرام لکھا۔ سارے بزرگان دین کے کتب کے مطالعے کے بعد یہ پتا چل گیا کہ حسینی وہ نہیں جو امام حسین کے خلاف جاتا ہے، حسینی وہ ہے جو حسین کے نام کی محفل سے جاتا ہے، حسین کا ذکر کرتا ہے، حسین کا چرچا کرتا ہے، وہی حسینی ہے۔ میرے دھام نگر والوں، وقت کی قلت دامنگیر ہے، اسٹیج پر علماء اکرام کا قافلہ موجود ہے، ان سے بھی آپ کو سننا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی مجھے موقع ملا تو دل کھول کر سنائیں گے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس چیز کی شعور نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ المختصر میں اپنے گفتگو کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کا شوق و جذبہ عطا کرے، کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کا شوق و جذبہ عطا کرے۔ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، شریعت کے خلاف قدم اٹھانے سے رکنے کا شوق و جذبہ عطا کرے۔ جب تک جیے دین پہ قائم رہے، ایمان پہ خاتمہ، قبر میں آقا کی زیارت، میدان محشر میں آقا کی شفاعت نصیب ہو، جدا ہو رہا ہو، دعا کر لو بھائی، رہی زندگی تو پھر آ کر ملیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا